Morning and Jai Hind class 11th. How are you all? I hope you all are doing well. Let's start continuing with chapter number 1, that is evolution and fundamentals of business. Right? What was the last topic? We were on page number 22. We discussed classification of business activities, right? For that I showed you the broad classification as well as the detailed classification of business activities. That business activities, right, business activities classified into two kind of activities, and those are industrial activities and commercial activities. Okay, again, commercial activities are divided into two parts, two activities, that is trade and auxiliary to trade. Auxiliary to trade, we discussed the activities which facilitates business like transportation, ठीक है, जो business में help करती हैं. Let's have a look on the detailed classification of business activities. They are industry and commerce. When we are talking about industry, we are talking about a sector. There are three sectors, that is primary, secondary and tertiary. Okay, primary are of two types, extractive and genetic. This we have already done. Secondary are of two types, manufacturing and construction. अभी सिर्फ आप समझो, डिटेल में मैं इसे आपको आगे समझाऊंगी. And when we are talking about commerce, they are of two types, like trade and auxiliaries to trade. Then again, trade is of two types, internal and external trade. Internal में हमारे wholesalers आते हैं और retailers आते हैं. External comes import, export and entry port. Okay, when we are talking about auxiliary to trade, those activities which facilitates business are transportation, banking, warehousing, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. आपका सामान तैयार है, आपने प्रोडक्शन कर ली है, लाइक सपोज आप एसीज मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोडक्शन इज डन, यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, यू नीड द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो दैट यू कैन रीच टू द कस्टमर्स, राइट. फॉर द प्रोडक्शन यू नीड टू अरेंज द फिनेंस. तो वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा? थ्रू बैंक. आपने बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, यू नीड टू स्टोर दैट समवेयर, दैट फॉर दैट यू नीड वेयर हाउस. वेयर हाउस में बाकी का सामान स्टोर करके रख देंगे. वो सामान सेफ रहे, फॉर द सेफ साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू नीड टू गेट द प्रोडक्ट इंश्योर्ड. एंड with all together we must not forget that without advertising nothing is possible in today's era. Okay, so we need to do advertising for the particular product we are manufacturing, we are into with. All right, then we discussed the industry. What is industry, dear students? Where it refer to the economic activities which are connected with the conversion of resourceful goods into useful goods. When we are talking about industry, industry में क्या होता है? Conversion of raw material into finished goods. Okay, beta, industrial products again are classified into two types, consumer goods which are used by customers directly, producers goods which are used for the production of other goods, जैसे मशीन बनाने के लिए, मशीन के टूल्स बनाने के लिए. एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी एक अपना सेक्टर होता है, अपनी इंडस्ट्री होती है, विच वी कॉल्ड एज बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. ओके, टाइप ऑफ इंडस्ट्री वी आर डन. आई एम जस्ट recalling it once again, which is because this is the most important part of the chapter. When we are talking about industries, we can broadly classify that they are divided into three categories, primary, secondary and tertiary. ओके, प्राइमरी सेक्टर में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक आता है. एक्सट्रैक्टिव हम पढ़ चुके हैं, व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग एंड ड्रॉइंग आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अर्थ, सी या एयर से. फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, फार्मिंग, क्वायरिंग, फिशिंग, हंटिंग एंड लंबरिंग. जेनेटिक means heredity. They are engaged in breeding plant and animals for their use in further reproduction, जैसे नर्सरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग होता है ना. विलेजेस में आप देखते होगे डेयरीज खोल लेते हैं, तो सिटीज़ में भी है ऐसा. ओके, और उस चीज़ को
सेल आउट करना मार्केट तक, लोगों तक पहुंचाना, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश हैचरी, this kind of industry. Okay, what comes in secondary, where we convert the raw materials, we are extracting out, right, into finished goods. तो वो दो तरीके से होता है, either through manufacturing or through construction. So today we will discuss the secondary industry. Primary industry we are already done with. ठीक है. So now comes secondary industries. Okay. So students, when we are talking about secondary industries, it is very important for us to know that what actually second industries are concerned for. Second industries are concerned with the processing of materials. Processing of which material? Raw material, which have already been produced at the primary stage. Primary stage पे मतलब we have already extract or draw out the product from the natural resources, and what comes in secondary industries, it is concerned with the processing, converting that raw material into finished goods. Okay, like mining of iron ore is the primary industries. ठीक है, mining of iron ore, आयरन निकालते हैं हम, उसकी माइनिंग करते हैं, दैट कम्स इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज. बट व्हेन वी मैन्युफैक्चर स्टील from the iron, that comes in secondary industry. Iron ore we are extracting, we are mining through primary sector, but the manufacturing of steel किससे बनना? Through iron. That is the process which is to be done in secondary industry. Okay, secondary industries again are of two types, manufacturing industries and construction industries. Okay, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पर कुछ प्रोडक्शन होती है, असेंबली लाइन होती है. प्रोडक्शन मतलब इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग, AC, TV, फ्रिज, ऑल द कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड वी आर टॉकिंग अबाउट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, let's first discuss what is manufacturing industries. Such industries that are engaged in the conversion or transformation raw material को semi finished product या finished product में जो convert करते हैं, those industries are known as manufacturing industries. वो produce करते हैं goods and then create form utility, फिर वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ में आते हैं. For example, textile कॉटन से बनाते हैं, स्टील आयरन से, सीमेंट, शुगर, राइट, ये सब मैन्युफैक्चर होता है. रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश गुड्स. द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से ड्रॉ आउट करते हैं, दे जनरली बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जब वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के पास आता है तो वो उनका रॉ मटेरियल होता है. फैक्ट्री प्रोडक्शन, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है, when we convert the raw material into finished goods, that is the outcome of manufacturing unit, that is the job of manufacturing unit, and they are of different forms like analytical industry. ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा? इसमें हम देखते हैं जो बेसिक मटेरियल होता है, हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से लेते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ बीइंग सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग का. सो इसमें क्या होता है, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम बीनीथ द अर्थ, राइट, अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल, उसको प्रोसेस करके फिर सेपरेट किया जाता है कितनी तरह के प्रोडक्ट में, पेट्रोल में, केरोसिन में, गैसोलिन में, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड सो मोर. सो दैट मीन्स द बेसिक मटीरियल इज एनालाइज, देखा जाता है व्हाट वी आर ड्राइंग आउट, व्हाट वी आर एक्सट्रैक्टिंग, एंड व्हाट वी आर एक्सट्रैक्टिंग. इफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग का हम बात करते हैं तो उसमें इट जस्ट सेपरेटेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और वो क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं हमारे इससे, जैसे कैरोसिन, गैसोलिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, या पेट्रोल इटसेल्फ. ओके, दैट कम्स इन एनालिटिकल इंडस्ट्री. व्हाट कम्स इन सिंथेटिक इंडस्ट्री? इसमें बेटा दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है टुगेदर टू ऑब्टेन सम न्यू प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल सोप, सीमेंट, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स and cosmetics.
इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं, मिक्सड करते हैं टू ऑब्टेन अ न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट. व्हाट दैट प्रोडक्ट इज़ अबाउट सोप. देखो सोप की अगर हम बात करते हैं तो सोप में हम हनी भी ऐड करते हैं, मिल्क भी ऐड करते हैं, ये भी रॉ मटेरियल ही है ना. और राइट पेंट में नंबर ऑफ़ कलर्स, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा तरह की चीज़ों को मटेरियल को जब कंबाइंड किया जाता है टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, दैट कम्स इन ओनली सिंथेटिक इंडस्ट्री. देन कम्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब प्रोसेसिंग से आप क्या समझ रहे हो, किसी चीज़ पर वर्कआउट होना, काम होना. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल प्रोसेस किया जाता है थ्रू अ सीरीज़, जैसे एनालिटिकल और सिंथेटिक इंडस्ट्री को यूज़ करके, है ना. इनमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, किसी चीज़ से एक नया प्रोडक्ट, किसी चीज़ के साथ मिलाकर 2 प्रोडक्ट मटेरियल्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. राइट पेट्रोलियम से सेपरेट करते हैं नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट रिफाइनिंग से. ओके सो प्रोसेसिंग में प्रोसेस करते हैं, मेकिंग यूज़ ऑफ एनालिटिकल एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक मेथड, जैसे टेक्सटाइल, शुगर, स्टील, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ओके कॉटन से टेक्सटाइल बनता है, शुगर केन से शुगर बनती है, तो वहाँ प्रोसेस काम हो रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रही है थ्रू दी वे ऑफ एनालिटिकल एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री. ओके देन कम्स असेंबली लाइन इंडस्ट्री. इसमें क्या होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर वेरियस कॉम्पोनेंट हैव बीन मेड एंड देन ब्रॉट टुगेदर फॉर फाइनल असेंबली. असेंबली लाइन में बेटा क्या होता है, लेट्स सपोज आपके माइंड में एक प्लान है टू मैन्युफैक्चर टीवी. ठीक है, आपको टीवी मैन्युफैक्चर करना है. उसके लिए आपको व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टेक अ फैक्ट्री either on rent or either you'll buy the factory. ठीक है, a place you need. वहाँ पर आप एक चेन होती है, that chain is known as assembly chain. let's suppose आप टीवी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं. सो टीवी का फ्रंट कवर, वायरिंग, स्विचेस, चेसेस भी तो लगता है ना टीवी में, बैक कवर, और देन उसकी पैकिंग. दिस इज़ कॉल्ड द असेंबली लाइन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ऑफ एनी फैक्ट्री. लेट्स सपोज यहाँ पर टीवी बनता है आपकी कंपनी में, आप एक टीवी कंपनी, मैन्युफैक्चर कंपनी के ओनर हैं, तो आपको असेंबली चेन बनानी होगी. ये एक मशीन होती है, एक चेन होती है जो चलती रहती है. मतलब यहाँ पर 4 पीपल्स आर वर्किंग हियर, 4 पीपल्स आर रिक्वायर हियर. स्विचेस के लिए दे नीड 2 पीपल, चेसेस के लिए दे नीड 2 पीपल, बैक कवर 4, पैकिंग के लिए 2. ऐसे लेबर रिक्रूट की जाती है, अपॉइंट की जाती है, और ये चेन रुकती नहीं है, चलती रहती है. ये 4 लोग फ्रंट कवर लगाएंगे, ये चलती रहेगी, चेन चलती रहती है यहाँ पर. मतलब टीवी 1 2 वो फ्रंट कवर लगा, आगे गए तो इन लोगों ने वायरिंग किया, वायर लगाए उसमें, आगे गया तो इन लोगों ने स्विचेस उसमें असेंबल किया, चेसेस लगाया, बैक कवर लगाया, और यहाँ पर इन 2 लोगों ने वो जो टीवी आया इनके पास, जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, उसकी पैकिंग कर दी. तो दिस इज़ दी असेंबली चेन. इट मीन्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर वेरियस कॉम्पोनेंट हैव बीन मेड एंड देन बॉट टुगेदर फॉर फाइनल असेंबली. बहुत सारे प्रोडक्ट से मिलकर, ये देखो, फ्रंट कवर, वायरिंग, स्विचेस, चेसेस, बैक कवर, पैकिंग. राइट Production of automobiles, watches, television, bicycle, railway wagons, etc. are the typical example of this industry. बेटा this is called assembly chain, assembly line. ये चलती रहती है, व्हील होते हैं इसमें, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक लाइन है जो चलती रहती है. यहाँ 2 टीवी आए, उन 2 टीवी पर इन 4 लोगों ने फटाफट से काम किया, एक साथ फ्रंट कवर सेट कर दिए, उन्हें आगे किया, यहाँ इन लोगों ने वायरिंग उस पर वायर फिक्स कर दिए, इन लोगों ने स्विच लगा दिया, चेसेस लगा दी, बैक कवर लगाया, यहाँ पर उस टीवी की पैकिंग हो गई और वो टीवी आपके पास पहुँच गया. दैट इज़ द जॉब ऑफ असेंबली लाइन इंडस्ट्री. ओके चलो, so we are done with the manufacturing industry. Now comes to the construction industries. What is there in construction industries? They are concerned with the making or construction of building, bridge, dam, road, canals. ये सब काम मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आता है. राइट दीज इंडस्ट्री यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं.
जैसे आयरन और स्टील, सीमेंट, ये सब बन के तैयार हो जाता है ना, लाइम, मोटर एट्सेट्रा। और साथ ही में जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट निकलते हैं, ड्रॉ आउट होते हैं, जैसे कोल, स्टोन, सड़क बनाने के लिए चाहिए होता है ना घर पे मार्बल, ओके। तो इन चीज़ों को यूज़ करके कंस्ट्रक्शन होती है किसी भी चीज़ की। The remarkable feature of these industries that their product are not sold in the sense of being taken to the market. इनके प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं किए जाते, किस सेंस में कि वो मार्केट तक जाएं, मार्केट तक लिए जाएं। ये एक्चुअली सामान लेते हैं जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, मोटर, ठीक है, कोल, स्टोन, और उससे किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड फैब्रिकेटेड एट फिक्स्ड साइट्स। एक जगह पर काम चलता है, बनाया जाता है, ओके। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ कम्स द थर्ड इंडस्ट्री, दैट इज टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट हैव अ लुक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री, तो इसमें हमारे फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, ठीक है, माइनिंग, फिशिंग, कॉरिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कम। सेकेंडरी में जो चीज़ हम यहाँ से लेते हैं, फार्मिंग, मान लो हमने इसमें लिया फ्लोर, ठीक है, राइस फ्लोर, वीट फ्लोर, उससे हम बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट कम्स इन सेकेंडरी। रॉ मटेरियल लेकर और उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। टर्शरी में गुड में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे ना अब हम उसकी, हाउ द प्रोडक्ट विल रीच टू दी कस्टमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। उसके अलावा आपकी सर्विसेज भी आती हैं इसमें। सर्विसेज क्यों जुड़ा है इसके साथ, जैसे टीचर की सर्विस, ओके, डॉक्टर सर्विस, डॉक्टर, ओके, पुलिस, ओके, मतलब दे आर गिविंग सम सर्विसेज टू द पीपल, सो दैट दिस प्रोफेशन कम्स इन टर्शरी सेक्टर, ऑल राइट। So come to the point, when we are talking about tertiary means this sector include those service which facilitate smooth flow of goods and services in the economy. Smooth flow मतलब ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ताकि गुड्स मार्केट तक, कस्टमर तक पहुंच जाएं अच्छे से और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। इनका बहुत बड़ा रोल होता है इन द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड। They actually serve as the backbone of modern industrial system. आप इसमें have a look here. See, हमने रॉ मटेरियल निकाल लिया है, हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया है। अब कन्वर्ट करने के बाद वो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें फिनेंस की ज़रूरत है वो हमें बैंक से मिलेगा, इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली दे आर गिविंग सर्विसेज टू इम्पार्ट गुड क्वालिटी एजुकेशन टू दी स्टूडेंट्स, ठीक है। All these include in tertiary sector. So that means we can say that this is the backbone of modern industrial system and for economy as well. Okay. So it include transport, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो टर्शरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जो इंडस्ट्री और ट्रेड को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हाउ टू डू, ठीक है। In other words, these are service activities which support the business enterprise. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो लोगों तक प्रोडक्शन नहीं जा पाएगा, सामान नहीं जा पाएगा, बैंक हेल्प नहीं करेगा तो फिनेंस अवेलेबल नहीं हो पाएगा, सोर्स नहीं मिलेगा हमें कोई, इंश्योरेंस कराना अपने सामान का, प्रोडक्ट का, हमारे साथ काम करने वाले लोगों का, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टोर करके रखना सामान को, फॉर दैट वी नीड वेयर हाउसिंग, राइट। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. When we are talking about transport, so this facility movement of good from one place to another. इसका मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जोड़ने, कस्टमर को जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो इट कम्स इन टर्शरी सेक्टर. बैंक प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़. ज़रूरी नहीं है कि आप आज कोई बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हो, यू हैव अ गुड बजट ऑफ 1 करोड़, बट आपका जो प्रोडक्शन है it demands 2 crore. So from where you will arrange those 1 crore? From the bank. Bank provide you the credit facilities to especially to the industries and trading firms. Okay. Banking services के साथ साथ credit facilities भी available कराता है बैंक. Insurance, it covers various business risk. आप सुनते हो ना कई बार कि
काम करते करते कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आग लग गई तो लेबर जल गई, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, वो सब बिजनेस रिस्क कवर करता है इंश्योरेंस। आपका प्रोडक्ट है उसको सेव रखता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का भी सब लोग इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे अपना कराते हैं मोटर बाइक्स का, कार्स का, इसी तरह लोगों का इंश्योरेंस होता है जो आपके साथ काम करते हैं, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस होता है। देन कम्स वेयर हाउसिंग, स्टोरेज फैसिलिटी देता है प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स को, जो सामान बना रहे हैं उनको भी, जो सामान ले जा रहे हैं उनको भी। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर, है ना, अगर आपका प्रोडक्ट बना दिया है और लोगों तक आप उसको अवेयर नहीं कर रहे हो लोगों को, तो हाउ कम द पीपल विल गेट टू नो अबाउट द न्यू ब्रांड कमिंग इन द मार्केट। All right. So in short, the above activities help the industry and trade through movement of good, finance, risk coverage, storage and promotion of goods. Okay. I hope the three industries, the three sectors are clear to all of you, that is primary, secondary and tertiary. Beta, tomorrow we will discuss the commerce. Okay. By the time you all are supposed to read it thoroughly. Thank you and have a good learning.